आज होने वाला है डे आउट, वो भी संडे वाला डे आउट, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिनको शायद आप कम जानते होंगे, लेकिन उनके काम को आप बखूबी जानते हैं। लेकिन आज उनको भी जान जाएंगे क्योंकि हम मिलवा रहे हैं ना आपसे। वैसे तो हमने बहुत सारे पसंदीदा सॉन्ग सुने, जिसमें से एक पसंदीदा मैं कह सकती हूँ ढिंका चिका, या फिर हम कह सकते हैं श्रीवल्ली, तो मुझे लगता है सभी का फेवरेट है। इस गाने को जिसको सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जो कोई और नहीं, रॉकस्टार, मैं इनफैक्ट कह सकती हूँ कि रॉकस्टार नहीं, पैन इंडिया रॉकस्टार जो हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं। और कौन है वो, ये तो आप समझ ही गए होंगे। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव। बहुत शुक्रिया आप सबको। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, आज हम एक स्पेशल चीज़ करने जा रहे हैं। आपका सॉन्ग भी आ चुका है जिसको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, क्या कहेंगे? Yeah, right now my first debut Hindi music video is out. It's called O Pari. So सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया इसके लिए भी। और those people who haven't seen it, please go and watch O Pari on the YouTube channel of T Series. And it's a cool breezy song. Hope you'll all like it. आज हम आपका डे फॉलो करने वाले हैं कि किस तरह का आपका डे होता है। हाउ एक्साइटेड यू आर, क्योंकि हम दिखाने वाले व्यूवर्स को कि हाउ यू फॉलो योर डे एंड एवरीथिंग। सो very excited and this is going to be something new for me as well. So आइए देखेंगे क्या क्या करेंगे हम आज। मुंबई में है, कितना एक्सप्लोर किया है मुंबई को, और क्या आपको अच्छा लगता है? मुझे माय फेवरेट इज़ पाव भाजी एंड वड़ा पाव। एंड जब भी मैं मुंबई आता हूँ, मैं आई डोंट गो बैक विदाउट ईटिंग इट, ईटिंग देम। सो वी आल्सो वी आर ईटिंग वन। ओह वाओ, आई वुड लव दैट। So I was always recording in Mumbai from many years, like even for my Telugu films, Tamil films. I always used to record a lot of songs. मैंने बहुत सारा गाने मुंबई में रिकॉर्ड किया। तो whenever I came, I never left without eating pav bhaji or vada pav. So that's my favorite. Yeah. My favorite. Okay. Woo! My favorite vada pav in Mumbai. क्या बात है भैया। Is there any specific name for this? Like with all this, what is this? सर उसको चूरा बोलते हैं। चूरा। चूरा। जो आटा होता है ना, उसका चूरा के दिल मेरा वड़ा पाव आई। ऑडियंस के लिए एक सवाल है, वड़ा पाव की वजह से कॉलेज कीर्ति बन गया या कॉलेज की वजह से वड़ा पाव कीर्ति बन गया? आंसर एंड विन सम प्राइजेस। रामा हरे बोलो कृष्णा कृष्णा हरे। तो जिस तरह से गाना है ओ परी, इसके BTS मुझे लगता है आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी, तो हम क्यों ना इसे DSP से ही पूछें। और क्या है BTS, थोड़ा सा बताइए क्या कुछ हुआ था गाने में, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं गाने में, तो आई एम श्योर पीपल विल लव टू नो कि क्या कुछ हुआ है गाने में। Yeah, it's a crazy planning that I did, and I traveled to a lot of places, and some places were comfortable to shoot, some places were not. So I had to use the cameras according to that because some locations were good.
So because I wrote, of course I composed and wrote the original version of the song. Like, so Hindi to Rakib Balam Bhaiya helped me to write it. He wrote it in Hindi. So since I know the concept of the song, I made a song. Then it should sound like rhymes, you know, like it should be with all cute English words. So I had a plan of how to shoot it, but my hobby is also photography, so I shoot a lot of pictures and videos. So the main girl who acted in this song, Sally, she's a dancer and model from Spain. So I shot all her shots in all the footage that you see of hers in the song that I shot, and my shots were shot by another DOP, Mr. Wino Keys. I had previously done something else, so I put it like, "Oh tera lipstick, hai mera drumstick." Wanted I made it sticker. Ye dono mil gaye to music. So the rest of the things I wrote in rhyming with lipstick. So we put it in rhyming with lipstick. So then the rest of the shots then followed according to the lyric. So you know, I could change it then and there as then also I edited the video, so I could reverse the shot or put this one there and that one here and create a storyboard out of the whole thing of the best shots. हिंदी सॉन्ग है ये स्पेसिफिकली, इसलिए मैं हिंदी में आपसे जानना चाहूँगी कि हिंदी में कितना ज़्यादा कंफर्टेबल अब आप होने लगे हैं, या कितना हिंदी अच्छा हो गया अभी आप? हिंदी में कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, लेकिन बात करने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं और मैं अटक जाता हूँ ये सोचते सोचते कि यहाँ की डालूँ या का डालूँ या के डालूँ इसमें कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को, इसलिए तो हटक जाता हूँ मैं। लेकिन जब आप बोलते हैं ना तब मैं समझ लेता हूँ, उसमें कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करने में सब स्पीड ब्रेकर्स हो जाता है। Okay, हमने बहुत सारे आपके फेवरेट गाने सुने हैं जो सभी के काफ़ी फेवरेट हैं, लेकिन आपके लिए पर्सनली अगर मैं बात करूँ, आपका कोई एक गाना जो आपको लगा वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू? टर्निंग पॉइंट ऐसा कैसे कहूँ, बहुत सारे गाने हैं, लाइक देयर विल बी लॉट ऑफ टर्निंग पॉइंट्स इन लाइफ, राइट? सो like initially in Telugu there was one song called Nuvu that became like the anthem of love songs, so that was a huge turning point. And then in mass songs, and there was one song called Shankar Dada MBBS that gave me that mass kind of music director image, like where this guy can that was for Chiranjeevi sir. And like that, then Dinka Chika, when it came in Hindi, it again brought me to the main limelight of, okay, this guy can score for even Bollywood big heroes and all like that. Then one song that I was always waiting for, I mean, one kind of song that I was always waiting to score in Hindi was Srivalli actually. I wanted to have a melody of my own in Hindi, and that dream came true with Srivalli. तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली बात कर दो हरफी. And beautiful lyrics by Rakib Balam Bhaiya. So thank you Rakib bhai, thank you Javed bhai. मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, and I really had a great day, great fun, thanks to you guys. So now you have seen how I spend my time when I see things that I like. Now to we are on the spot to do some reels and some masti now. So you also keep listening to Opari and keep watching the video again and again and again and again, so that it becomes a super hit and blockbuster and a sensation. Thank you guys for all the love that you've always been giving me. Now it's time for you to show more love on me and make your own reels using Opari, 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 Pari, Pari. Thank you guys. मनोरंजन की दुनिया से आई है एक बहुत बड़ी दुखद खबर ये है कि अभिनेत्री वैशाली ठक्कर ने कर ली है आत्महत्या। इंदौर के उनके घर में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और वैशाली के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है।
शुरुआती जांच में इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। हालांकि जांच के बाद ही पता चलेगा कि वैशाली की आत्महत्या का आखिर कारण क्या है। मगर ये मनोरंजन की दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। वैशाली ठक्कर ने ये रिश्ता क्या कहलाता है, ससुराल सिमर का, ये है आशिकी जैसे सीरियलों में काम किया था। वैशाली का आखिरी शो था रक्षाबंधन। ऐसा कहा जा रहा है कि वैशाली की एक बिजनेसमैन के साथ शादी भी होने वाली थी इस दिसंबर के महीने में, और जिसके लिए वो इंदौर में अपने घर पर रह रही थी। बहुत टाइम हो गया हम भाभी जी के घर नहीं गए, तो चलिए हम जाते हैं भाभी जी के घर। खबर अंतर पूछते रहना चाहिए ना, तो पूछते हैं भाभी जी घर पर हैं क्या? भाभी जी के दीवाने तो अब तक सिर्फ विभूति जी थे, लेकिन ये कौन बहरूपिया है जो भाभी जी को अपनी गोद में उठा रखा है। जिस तरह विभूति जी भाभी जी को देख शॉक्ड हो गए हैं, उसी तरह हम भी शॉक्ड हैं कि आखिर ये कौन है जो हिप्पी लुक में भाभी जी को प्यार की झप्पी देने की कोशिश कर रहा है। ये जो ऐसी स्टोरी आई है एक्चुअली, जिसमें मनमोहन तिवारी का एक भाई है, वो उसका नाम है मदन मोहन तिवारी, और ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही जो हिप्पी टाइप लोग होते हैं, खूब अपनी स्लैंग अंग्रेज़ी वगैरह ये सब बोलते हैं, उस टाइप तरीके का कोई चरित्र है। बेसिकली है मनमोहन तिवारी जैसे ही देसी, लेकिन किसी कारणवश मनमोहन तिवारी ने ही ये गेटअप लिया है, क्योंकि वो किसी खूनी से बच रहा है एक्चुअली। ओह, तो ये जनाब खुद तिवारी जी हैं जो किसी से बचने के लिए अपना भेष बदले हुए फिर रहे हैं। तभी तो भाभी जी अपने अगल बगल भटकने दे रही हैं, वरना भाभी जी को किसी भी मनचले आशिक को भटकने नहीं देती। और ये बात विभूति जी से बेहतर कौन जानता है। एक बात बोलेगा, आप ना बहुत ही नाटी हैं सच्ची। वो जब एक्टिंग कर रहे थे ना देवर का, हमको आप पर बहुत ही प्यार आ रहा था। खैर, आप सभी को लग रहा होगा कि तिवारी जी ने भाभी जी को गोद में उठा रखा है, लेकिन मामला यहाँ बिल्कुल अलग है। देखिए पर्दे के पीछे का नजारा, जहाँ भाभी जी को एक टेबल पर बिठाया गया है और शूट ऐसे किया जा रहा है कि जैसे तिवारी जी ने खुद अपनी गोद में भाभी जी को उठा रखा है। वैसे तिवारी जी ने भाभी जी को अपनी गोद में उठा रखा है, लेकिन ये देख विभूति जी का दिल भारी हुआ जा रहा है, क्योंकि विभूति जी नहीं जानते कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद तिवारी जी हैं। ये तीनों जब साथ हों तो चूहे बिल्ली का खेल तो होना ही है। हम बोले रहे ना आपको कि हमको चूहे से बहुत ही डर लगता है। हाँ, वो चूहे को हम जैसे देखते कहाँ है चूहा? वैसे चूहा कहाँ है? तो देखो कॉमिक में उसमें कुछ एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं, तो अचानक भभूति जी ने जो है वो मदन मोहन तिवारी की गोद में भाभी जी को देख लिया, जो कि मनमोहन तिवारी नहीं है, तो वो बड़ा शॉक्ड है। तो उसका ध्यान बटाने के लिए भाभी जी जो है इधर उधर गेम्स खेल रही है कि वो देखो चूहा, वो उनके पीछे भागता है, फिर उछल के फिर गोदी में आ जाती है। तो इस लाइक थोड़ा सा इस सीन का स्लैपस्टिक नेचर है। खैर, तिवारी जी भले ही अपना भेष बदल कर रखें, लेकिन सच्चाई तो पता चलनी ही है। जब तक सच्चाई का पता नहीं लग जाता कि अनीता जी के भाई खूनी है या नहीं, तब तक ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार में का जो विनायक है वो गुम हो गया है। पता नहीं गुम नहीं, एक्चुअली गुमसुम हो गया है। वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। घर वाले पूछे जा रहे हैं कि बेटा क्या हुआ बता, लेकिन बच्चा है कि बोलता नहीं।
नन्हा विनायक गुमसुम सा है, जो अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने आई बाबा के साथ हमेशा खुश रहा करता था। आज उस विनायक को ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम से चुपचाप हो गया है। कहीं विनायक को स्कूल में किसी ने तो कुछ नहीं कह दिया ना। अब स्कूल से वो सई के घर गया था और सई के घर से जब से वो लौटा है ना, गुमसुम सा है। पाखी उसे कह रही है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब गरबा खेलने जाएंगे। फिर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं है। काकू और अश्विनी भी परेशान है कि आखिर क्या हो गया। हिरणी भी उदास है ऐसे विनायक को देखकर। इसे क्या हुआ? अश्विनी आई, उसने बोला। अब विराट पीछे पीछे गया है विनायक के, ये जानने की कि आखिर बात क्या है। अब बात तो कोई जरूर है जो कि फिलहाल अभी बताना सही नहीं होगा। थोड़ा सा नाराज है, मायूस है और वो ऊपर चला गया है। विराट आया है उसको डांडिया खेलने के लिए ले जाने के लिए, लेकिन पता चलता है कि वो यहाँ मायूस है तो उसे मनाने गया है ऊपर कि हुआ कि उसे एक्चुअली पता नहीं है, विराट को भी पता नहीं कि हुआ क्या है। तो विराट भी ऊपर जाएगा, पता हो चलेगा उसे कि क्या हुआ विनायक को, क्यों इतना मायूस है। विनायक खुद बताएगा अपने बाबा विराट को, और उसके बाद क्या होगा ये सब देखने का इंतजार तो हमें भी रहेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इमली बेचारी निकली थी अपने होने वाले पति के लिए करवा चौथ करने के लिए, जिसके साथ वो 7 जन्मों का बंधन मांग रही थी। उसका साथ क्या 7 दिन में ही खत्म हो जाएगा? क्या लगता है आपको, ऐसा होगा क्या? जिसके नाम का सिंदूर इमली की मांग में सज गया, वो देखिए खुद कैसे आ गया इमली के पास। ये मैं नहीं बताऊंगी। ये कुछ है, ड्रामा है, करवा चौथ है, ऑफ कोर्स ऐसा फंक्शन तो ड्रामा के बिना कैसे होगा। तो ड्रामा है जिसमें कैसे ये सिंदूर मेरे मांग पे गिरता है या कैसे होता तो वो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। अब एक तरफ इमली है जिसने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा है, उसके सामने अथर्व खड़ा है। अब अथर्व कभी इमली को देखता है तो कभी चीनी को। कहीं न कहीं अथर्व के मन में गिल्ट है। वो सोच रहा है कि इमली कितनी प्योर है। अगर उसने सच्चाई बता दी कि वो चीनी से प्यार करता है तो इमली का दिल टूट जाएगा। उसके मन में फिलहाल अभी यही सब चल रहा है, लेकिन इमली के दिल में तो ये चल रहा है कि उसका सुहाग हमेशा सलामत रहे, खुश रहे। या गिल्ट एब्सोल्युटली गिल्ट था ना, तो वही सीन में कर रहे थे। योर टेक? हाँ सेम, लाइक इमली बहुत प्यार करती है, इसको पता है कि इमली बहुत प्यार करती है अथर्व से, सबको पता है। लेकिन इसका पॉइंट वही है कि अगर मैं इसे प्यार नहीं करता हूँ तो ये मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इमली के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि दिन ब दिन इमली का प्यार बढ़ता जा रहा है, तो गलत है। एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ती जा रही है यार। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ये चाहता है कि कैसे भी करके इमली को पता चल जाए कि ये चीनी से प्यार करता है, और चीनी को भी पता चले कि चीनी से ये प्यार करता है, और सब चीज़ें सॉल्व हो जाए। देखते ही देखते करवा चौथ की पूजा खत्म हुई। इमली के घर वाले उसे छेड़ भी रहे हैं। वो मंद मंद मुस्कुरा रही है और चीनी खड़े होकर ये सब देख रही है। अब जो सच्चा होता है ना, जिसके मन में छल नहीं होता है, सीता मैया उसके साथ कभी गलत होने ही नहीं
नहीं देगी तो इमली हम जानते हैं कि आपकी शादी अथर्व से ही होगी। फिर चीनी और उसकी बड़ी माँ कितना भी कुछ क्यों न कर ले, वो आपकी और अथर्व की ये शादी नहीं रोक पाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बिग बॉस का पहला एविक्शन राउंड हुआ और पहले निकलने वाली प्रतियोगी बन गई श्रीजिता डे। तो चलिए जान लेते हैं श्रीजिता के मन की बात। मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो इस सीजन में सबसे पहले घर से बेघर होने जा रही है, उनका नाम है, इट वॉज अनबिलीवेबल, श्रीजिता। अफसोस की बात है, दुख की बात है कि शायद ऑडियंस ने मेरा साथ नहीं दिया। बहुत ही दुख की बात है। मैं मुस्कुरा तो रही हूँ पर अंदर से बहुत ही दुखी हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रन सिंह और आप सभी का स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। बिग बॉस सीज़न 16 का पहला एविक्शन हो चुका है और ये काफ़ी शॉकिंग है। हमें काफ़ी शॉकिंग लग रहा है और आपको भी लगेगा। हमारे साथ है श्रीजिता डे जो घर से बाहर निकलकर आज हमारे साथ है। आपने एक्सपेक्ट किया था? मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बहुत महीनों तक वहाँ रहने के लिए गई थी और घर भी काफ़ी मुझे पसंद आने लग गया था और मुझे लोग भी कुछ लोग भी काफ़ी अच्छे लगने लग गए थे। तो मुझे वहाँ पे बहुत दिन तक रुकना चाहती थी, पर अफसोस की बात है, दुख की बात है कि शायद ऑडियंस ने मेरा साथ नहीं दिया। शायद उन्हें कुछ लगा होगा मेरे बारे में अलग तरीके से, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं वही दिखाना चाहती थी कि मैं रियल में क्या हूँ, पर शायद वो गलत तरीके से पोर्ट्रे हुआ होगा। तो उन्होंने जब मेरा साथ नहीं दिया, मुझे फाइनली एविक्ट होना पड़ा। बहुत ही दुख की बात है। मैं मुस्कुरा तो रही हूँ पर अंदर से बहुत ही दुखी हूँ। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं साथ नहीं देने वाले, हम वो जानना चाहेंगे आप वो किस टॉपिक पे बोल रहे हैं? वोटिंग के टॉपिक पे बोल रही हूँ, पर उससे पहले अगर वोटिंग से पहले की बात है तो नॉमिनेशंस की बात होती है। तो मैं जिस वजह से नॉमिनेटेड हुई थी वो शायद लोगों को बहुत अलग तरीके से या तो पोर्ट्रे किया गया है या तो लोगों ने अलग तरीके से कंसीव किया है। मैं ज़रूर घर जाके सारा फुटेज देखूंगी, तब मुझे समझ में आएगा कि शायद किस तरीके से दिखाया गया है और किस तरीके से लोगों ने कंसीव किया है। और उसके बाद शायद लोगों को लगा होगा कि मैं एरोगेंट हूँ या जो भी है, किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो उस मुद्दे पे अगर हम आए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे वो गोरी बहुत ही इनसेंसिबल लगती थी, क्योंकि उनको सबसे पहले घर में खाना खाना होता था। जब हम साथ में सब लोग रह रहे हैं एक परिवार की तरह, तो मुझे लगता है सबको साथ में बैठ के खाना चाहिए, जो हम पहले के 2-3 दिन किए थे। उसके बाद सब अपने अपने आते थे, अपना प्लेट उठाते थे, खाना दो। और उससे क्या होता था, लास्ट के जो लोग होते थे सबके रूम से हम अलग अलग राशंस कलेक्ट करते थे। हम डिसेंट अमाउंट ऑफ राशन कलेक्ट करते थे, पर उसके बावजूद जो आगे के लोग हैं वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते थे तो पीछे के कुछ लोगों को खाना नहीं मिलता था, जो सेंसिबिलिटी नहीं है। तो उस दोपहर को भी उस दिन वही चीज़ कुछ ऐसा चल रहा था और मैं और सुम्बुल खाना बना रहे थे। हमें भी भूख लगती है, ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग है, आप प्रिविलेज्ड हो तो हमेशा आप लोग आगे आके पहले आके 3-4 लोग खाना खा लो, ठीक है, वो अलग मुद्दा है। तो मुझे उस समय पे उन लोगों के अंदर मुझे सेंसिबिलिटी कम लगी। उसके बाद क्या हुआ, 2 लोग मेरे पीछे खड़े थे और हमारी जिम्मेदारी थी कि जो खाना बनाएंगे वही खाना सर्व करेंगे, ताकि उनको क्वांटिटी का अंदाज़ा रहे, ताकि लास्ट के लोगों को खाना कम ना पड़े।
तो 2 लोग मेरे पीछे खड़े थे, आई थिंक शालीन और निमृत, जिनको मैं खाना सर्व करने वाली थी। तो मैं नीचे से कपबर्ड से कटोरी निकाल रही थी, तो उसी कपबर्ड के ऊपर जो ड्रॉर है उधर से मैडम को निकाल के हाथ पोंछना था। तो मैडम ने अभी खाना खा लिया, पेट भर गया उनका, उसके बाद हाथ धो के, ये नहीं कि मैं कोई टिश्यू से पोंछ लूँ या बाथरूम में जाके टाल से पोंछ लूँ या पीछे माइक्रोवेव के ऊपर जो टाल्स रखे हुए उससे पोंछ लूँ, नहीं, उनको वही जगह पे वही गमछा जो अर्चना लेके आई थी उनके साथ, तो वही गमछे से पोंछना था। तो यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा सेल्फिश लगा उनका ये बिहेवियर कि आपने खाना खा लिया, आपको भी भूख लग रही थी, आप थोड़ी देर आके बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, यार श्री बहुत भूख लग रही है, यार थोड़ा सा और दे, थोड़ा सा और दे। तो आपको ये रियलाइजेशन नहीं है कि आपको भूख अगर लग सकती है तो सृजिता को भी शायद भूख लग रही है और जो 2 इंसान पीछे खड़े उनको भी भूख लग रही होगी। जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो जेस्चर किया वो गलत था, लेकिन उस पर जो आपने अश्लील था वो मैंने जेस्चर ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मतलब मैं अपने मम्मी पापा के कसम खा के बोल सकती हूँ, ऐसी चीज़ें, और एक बार नहीं, 3 बार उन्होंने किया। एक बार गार्डन में किया, वापस से आके किचन में किया। इट वॉज अनबिलीवेबल, और पता नहीं बिग बॉस को कैसे वो चीज़ नहीं दिखा। लेकिन उस पर सिर्फ आपने अपब्रिंगिंग वाली बात कह दी, तो आप पर, हाँ, मतलब मैंने ये वो शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने ये भी इस्तेमाल नहीं किया कि आपके मम्मी पापा ने क्या सीख दी। मैंने सिर्फ ये बोला था, इससे पता चलता है आपको क्या सीख मिली है। आप नहीं तो आपकी जगह किसे बाहर होना चाहिए था? मुझे डेफिनेटली गौरी लगी थी, नॉट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। मैं तो उस बात को पीछे छोड़ के भी आगे बढ़ चुकी थी, पर वो बार बार कोई भी टास्क में, कोई भी चीज़ में मेरा नाम लेती गई। मतलब 3-4 टास्क उसके बाद हुआ, वो लेती गई। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी हंसी भी आई थी, मतलब कि आप लेट गो ऑफ नहीं कर सकते हो। उसका यही साइकोलॉजी था कि अगर मैं MC स्टैन के साथ बहुत घुल मिल जाऊं या उनके साथ एक ही प्लेट से खाना खाने लग जाऊं या एकदम बेस्ट फ्रेंड दिखाऊं, तो शायद मुझे ऑडियंस भी पसंद करने लगेंगे, और कहीं ना कहीं ये सच भी निकला। सृजिता, आपकी और टीना की फ्रेंडशिप पहले दिखाई गई थी जब आप लोग सलमान के सामने थे, लेकिन उसके बाद अंदर जाने के बाद चीज़ें जो है वो बदली। तो वो एग्जैक्टली क्या था? दोस्ती आपकी और टीना की है या फिर? तो फ्रेंडशिप नहीं दिखाई गई थी। एक्चुअली सलमान सर ने ये बोला था कि आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत टाइम से एक साथ काम करते हो, और हमें फिर एक बोर्ड मिला था जिसमें ग्रीन और रेड था। अगर आप रेड दिखाओ इसका मतलब नहीं है, अगर आप ग्रीन दिखाओ इसका मतलब हाँ है। तो जब सलमान सर ने पूछा कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने डेफिनेटली रेड दिखाया था, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। और रही बात पीछे की, तो वो मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पीछे की बात हमेशा पीछे छोड़ देनी चाहिए। जैसे मैंने गोरी वाली चीज़ में भी बोला कि आपको एक पॉइंट के बाद भूल जाना चाहिए। आप चीज़ों को पकड़ते रहेंगे तो आप एक टाइम के बाद आप ही प्रेशर कुकर की तरह फट जाएंगे। वैसे इट्स टू अर्ली टू आस्क, बट आपके अकॉर्डिंग अभी आप जब बाहर आ गए और अब आप देखते हैं, तो क्या लगता है कि टॉप 5 कॉन्टेस्टेंट कौन हो सकता है और कौन डिजर्विंग है, किसे होना चाहिए? ऑनेस्टली इट्स टू अर्ली टू से। बहुत ही क्योंकि बहुत लोगों की नकाब बेनकाब ये सब होना बाकी है। मुझे ज़रूर 2 लोग तो दिखते ही है, नहीं एक्चुअली 3 लोग तो दिखते ही है। स्टैन, निमृत, गौतम एंड कुड बी ऑल्सो अब्दू। तो 4 लोग। या सो लास्टली आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? हाय एवरीवन, शायद आप लोगों ने थोड़ा सा कमी कर दिया मुझे प्यार देने में, प्यार भेजने में, पर जब आप ये वीडियो देखेंगे, जब आप ये इंटरव्यू देखेंगे टीवी में, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैं बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूँ। आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, और मैं सबके तरफ बहुत एक्सेप्टिंग हूँ, पर वो सिचुएशन मेरे लिए भी बिल्कुल भी एक्सेप्टिंग नहीं था, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ही अश्लील था, और मुझे लगा कि वो हमारे संस्कार, कल्चर, सोसाइटी के बहुत ही खिलाफ था। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं बिल्कुल एरोगेंट नहीं हूँ, और मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती हूँ ज़िंदगी में कभी भी। थैंक यू। राधा मोहन की राधा सीरियल की हर बहू की तरह जांबाज निकली। सीरियल की बहू की जो लेगेसी है, जो धरोहर है, उसे संभाले रखे हुए है राधा ने।
है मुश्किल दौड़ना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, ये है पाउडर राधा। तो राधा नहीं बच पाई और गिर गई धड़ाम से। गुनगुन और राधा के चोर पुलिस वाले खेल में राधा को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण राधा पाउडर पर फिसलकर गिर गई। राधा पाउडर पर फिसलकर गिर गई और आंखों से जारी हो गए आंसू। गुनगुन खड़ी होकर ये देखती रही, साथ इसके तुलसी की आत्मा भी इन पर नजर रखे हुए है, कहीं ये साजिश तुलसी की तो नहीं, क्योंकि वो गुनगुन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रहती है। गुनगुन राधा को छेड़ रही थी, तो बस वही राधा, क्योंकि गुनगुन बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी, तो राधा उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी और उसी संभालने खेलते वक्त राधा गिर जाती है और गुनगुन उनकी चोट देखकर मेडिसिन लाने जाती है। जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि तुलसी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन राधा गुनगुन को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, इसलिए तो गुनगुन के खिलाफ एक भी शब्द वो नहीं सुन सकती, चाहे वो दामिनी या कोई और ही क्यों ना हो, क्योंकि आज दामिनी ने राधा के सामने गुनगुन के खिलाफ कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर राधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गुनगुन के बारे में बुरा भला कह रही है दामिनी राधा के सामने, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है गुनगुन के लिए। एक मदरली फीलिंग जैसी हो जाती है राधा में जब भी गुनगुन की बात आती है। दामिनी को अच्छी तरह से बस बोल देती है कि आप कभी मार नहीं सकते और मारने का सोचिएगा भी मत, बिकॉज मैं हूँ उसके साथ। यही तो रिश्ता ऑडियंस को जोड़ कर रखता है, क्योंकि राधा गुनगुन की सेवियर बनकर हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। राधा हमेशा गुनगुन को अपनी छत्र छाया में रखती है ताकि उस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।